Hello everyone. This is our seventh lecture on social issues, and in this lecture, we will be taking up two topics. The first topic would be urbanization and their problems, and the remedies for urbanization, the problem of urbanization in India. And it's not just it should not be seen as a problem in itself. It has got its own positive aspects also, that obviously with the growth of industries, with the growth of new employment opportunities, and the overall economic growth of India, people have migrated from the rural areas to the urban areas in the search of good living standards, basically. So this is called as urbanization. Actually, it's just a brief idea about urbanization. So the first topic would be urbanization. Second topic that we will be taking up in this lecture is poverty issues. Both these topics are given in your social issues paper 1. Okay. So first of all, to start with, you have to understand nature and concept of urbanization. So what is urbanization to start with? As the word itself denotes, it is when the population shift happens from rural areas to urban areas. Like for example, we know that India as a whole is still an agrarian and a rural economy. India is an agrarian and a rural economy. That is, most of our population, that is even more than 17% of our GDP, depends on the agricultural sector. Okay, there are sectors of the economy. We know that there are three sectors of the economy: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. And primary sector consists of agriculture and other allied activities. And we must understand, and this is actually a fact, that till now more than 17% of our GDP comes from the agricultural sector. So you must know that more than 52% population is still dependent on the agricultural sector. Then comes the secondary sector, which is the production sector, okay, manufacturing sector, like for example industries, factories and all. And third is the tertiary sector, or you can say the service sector. So urbanization is basically a phenomenon which is guided by, and it is actually motivated or influenced by the kind of economic system a country has. Like, for example, if most of the population still now, like in the pre independence days or even after, just after independence, if still a major section of the population would depend on the agriculture and other such services, then obviously we would still be having major section of our people living in the rural areas. But after independence, what has happened is that with the development of the service sector, or you can say the tertiary sector. Okay, now tertiary sector जो होता है economy का, that tertiary sector consists of, I will write it down over here because all these points are not mentioned in the slides. So जो tertiary sector है economy का basically, that consists of service sector, banking, insurance, transportation, and other such sectors. Okay, and it is one step, you can say, an advanced sector of the economy. So जो tertiary sector है economy का, जिसका part होता है service sector, आज presently ये है जो situation है, is the foremost contribution to the economy as far as GDP is concerned is coming from the service sector. Then comes the manufacturing sector, and lastly is the agrarian sector. So the growth of service sector in the India's GDP has increased. The contribution of the service sector to India's GDP has increased, and we are no more just an, though we are largely an agrarian society only because 17% of our GDP is coming from agriculture. But still, after the growth of service sector, what has happened in the search of better employment opportunities, in the search of better living standards, people have migrated. There has been, we have noticed a population shift which has happened from rural to urban areas. In Indian case, it was because of shift to the service sector, better service and employment opportunity in the urban areas. In the same phenomenon has happened in other parts of the world, like for example in Europe and all. Their urbanization happened because of industrial revolution. When industrial revolution happened in the initial stages, largely it was a very European society and other Western societies. They were largely feudal societies. Feudal society means their economy dependent on land, and land से related जो भी transactions होते थे. It was basically a feudal society.
But when the society started changing and with the advancement of scientific and technological innovations जो हुए वहाँ पे, उसकी वजह से जो फिर फाइनली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद हमने देखा एक मास लेवल ऑफ माइग्रेशन होता हुआ and population shift hota hua from rural to urban areas. Okay, so that was a phenomenon which actually marked the urbanization in the European and other Western societies. In Indian society, you have to understand that urbanization is basically a phenomenon which happened after independence and much later after independence, when our society shifted, when we saw a shift from the agrarian to the service sector, and when there was more and more growth in the service sector and other job opportunities in the urban areas, it is then that we see a population shift happening from rural to urban areas in case of India. So what is urbanization? In short, it is shift from rural to urban areas, gradual increase in the proportion of people who are living in the urban areas, and the ways in which each society adopts to this change. So urbanization is not just population shift, but gradual increase in the proportion of living people in the urban areas, and also the manner in which each society is adapting to this change, because the kind of lifestyle you are having in the rural areas is very different from the lifestyle in the urban areas. ऐसे बहुत सारे amenities होते हैं, like basic life जो necessities होती हैं या amenities होती हैं, even those are not available in the rural areas. So there is a marked shift in the kind of lifestyle people are having in rural and urban areas. There's a marked shift. Okay, and urbanization refers to this process जहाँ पे ये एक पूरा lifestyle का change भी आता है. Okay, so it is a universal process implying economic development and social change. So first of all, उससे associated क्या होता है? Urbanization के associated क्या होता है? एक होता है economic development, और दूसरा जो associated phenomenon है urbanization का, वो होता है उससे related जो social change आपको notice करने को मिल रहा है. ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ में एक सोशल चेंज आपको देखने को मिल रहा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ. ओके, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो अर्बन एरियाज में है वो ज्यादा है, ऑब्वियसली, बिकॉज रूरल एरियाज में बेसिकली एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज या अदर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज ही होती हैं. बट अर्बन एरियाज में सर्विस सेक्टर के रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स होते हैं, एंड वी नो दैट बहुत सारे अदर सेक्टर्स में भी जो अर्बन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बेटर होती हैं, and the kind of lifestyle is also different. The societal condition is also different. So it actually marks a lot of change in even in the societal conditions as far as rural and urban areas are concerned. तो वो जो एक पूरा shift होता है economic development and social change का urban areas में, वो सारा कुछ होता है encompassed as urbanization. Now we will study urbanization in India. Basically, we have learned that in the Western and other European societies, urbanization happened right after Industrial Revolution. तब कहीं जाकर जो पीपल थे, जो फ्यूडल सोसाइटीज के लोग थे, जो रूरल एरियाज में वहां पे रह रहे थे, स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज इन द सर्च ऑफ बेटर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में उनको जॉब्स मिल सके. इसके लिए वो वहां से यहाँ शिफ्ट हुए थे, क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे ग्रो करने लग गई because of the increasing economic opportunities in the urban areas. तो वो हुआ था basically यूरोपियन सोसाइटी में. बट इंडिया में कब हुआ? Urbanization was mainly caused after independence due to adoption of mixed system of economy by the country, which gave rise to development of private sector. Because we know that पहले जो था डोमिनेंस था हमारे कंट्री में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था पब्लिक सेक्टर का. ओके, दैट इज एवरीथिंग, इवन द इंडस्ट्रीज वर मेनली पब्लिक इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर जो था उसका डोमिनेंस था, बिकॉज गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था इंडस्ट्रीज के ऊपर वो बहुत डोमिनेंट था. ओके, बट आफ्टर द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज सेक्टर मेनली, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द मिक्स्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, वेयर the public and the private sectors coexist. What is mixed system of economy? Where public sector and the private sector coexist. अब पब्लिक सेक्टर का क्या एग्जांपल है? लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, या जितने भी पीएसयूज होते हैं, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल बीएचईएल हो गया, या अदर सच पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हो गए, जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पीएसयूज हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, या गवर्नमेंट के वर्क प्लेसेस हैं, और जितने भी गवर्नमेंट जो एंटिटी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, वो होता है पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? लाइक इट इज टोटली कॉर्पोरेट सेक्टर विच इज adopted and which is held and controlled by the private individuals. It is free from influence of the government. That is the private sector. And it was after the development of private sector and adoption of private sector in the economy, and then the growth of service sector, that eventually urbanization occurred in India. Okay,
Urbanization is taking place at a very faster rate in India. Population which is residing in urban areas in India. Now, this is actually a data through which you will try to understand that at what rate urbanization is happening in India. So, according to 1901 census, the population in urban area was just 11.4%, but that count increased to 28.3% according to 2001 census. So, just in one century, you see an increase of till 28.53%, okay, and it crossed 30% as per the 2011 census, which is now standing at 31.16% of the population lives in the urban areas. According to a survey by United Nations State of World, अगर world population की बात करें in 2007, by 2030 तक क्या होगा, 40.76% of the country's population is expected to reside in the urban areas. So India की population according to this survey United Nations State of World Population Report, 40.76% of India's population by 2030 will be living in urban areas. So अगर ये जो एक अब आपको सिर्फ ये डाटा नहीं समझना है या प्रोसेस नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि what is urbanization denotes, what does urbanization stand for, कि अगर urbanization हो रहा है किसी कंट्री में तो वो क्यों हो रहा है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक तो होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी कंट्री का ऐसा होगा कि उसमें सारे सेक्टर्स डेवलप करेंगे, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट मोस्टली ऑल द सेक्टर्स, वेदर इट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर or it is the banking sector or it is the railways or the transportation sector, or if any sector of the economy will grow as per the country's growth in GDP and other such areas, obviously urbanization hoga. Obviously urbanization is actually, you can say, a resultant of or a result or a consequence of the growing GDP and the growing uh, growth of the country's economy in many sectors, like not just the agriculture sector ही अगर सिर्फ grow करता तो rural areas में population increase होती, but agriculture sector का कहीं ना कहीं contribution जो हो रहा है वो कम हो रहा है धीरे धीरे करके, and mechanization हो रहा है agriculture का, उतना ज़्यादा जो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो नहीं हो रही है, बिकॉज दैट इज व्हाई वी से दैट इन एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में देखा गया है कि बहुत डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है. डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एग्रीकल्चर बेसिकली इज अ सीजनल फेनोमेनन, ठीक है. ऐसा एग्रीकल्चर की मॉनसून सीजन होता है या खरीफ सीजन होता है, राबी सीजन होता है, सिर्फ उन मार्क्ड कुछ सीजन्स में एम्प्लॉयमेंट होती है एग्रीकल्चर में. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द फार्मर्स एंड द अदर लेबरर्स दे आर विदाउट एनी ऑक्यूपेशन, बिकॉज वो सीजनल एक सीजनल ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, तो वहाँ एक तरीके का डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज इट मे सीम दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग to the productivity of agriculture, but in reality they are not. So that is called as disguised employment. तो ये जो disguised employment का problem है वो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है. एंड जो स्पेयर टाइम होता है जब वो फ्री होते हैं, दे आर नॉट एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका जो टाइम है प्रोडक्टिविटी वो कहीं ना कहीं वो लूज हो रही है, कहीं ना कहीं वो टाइम दे आर लूजिंग आउट ऑन दैट टाइम. तो बेसिकली जो लेस प्रोडक्टिव स्टेटस है एग्रीकल्चर का इंडिया में वो एक बड़ा रीजन है कि पीपल आर migrating because of this problem of disguised employment in the agriculture in the rural sector. People are migrating to the urban areas to search for better job opportunities and to search for better living standards, because urban areas may, because of the growth of the country and other sectors of the economy, there are more and more jobs and there are more and more better living conditions which are created in the urban areas if you compare it with the rural areas. तो अर्बनाइजेशन एक फिनोमेनन अपने आप में कुछ एक डिनोट भी कर रहा होता है, उस चीज को भी समझना जरूरी है, ठीक है. Now, what are the economic effects of Indian urbanization? So, first of all, you have to understand, हमने पढ़ा कि urbanization क्या है, urbanization का present rate क्या है country में, and by 2030 हमने ये भी पढ़ा कि 40.76 of our population would be residing in the urban areas. Now, we will study that if this happens, then what would be the economic effect of such Indian urbanization. First of all, lopsided development. आप ये सोचो सुनो कि अर्बनाइजेशन के सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो यही हो रहा है कि ठीक है, country is growing, people are having a better standard of life and all the other such things, but there is a stark effect which is also happening on the Indian economy. और उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आप कह सकते हो लॉप साइडेड डेवलपमेंट, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज एक्चुअली वेरी ill distributed, okay. A very small section of the society is amassing a very lot of wealth, so there is an unequal distribution of wealth as far as India is concerned.
और इसीलिए कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन जब उस कंडीशन में हो रहा होता है तो एक लॉप साइडेड डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब एक अनइक्वल डेवलपमेंट होता है. स्लम क्रिएशन एंड अर्बन पॉवर्टी आर द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन. बिकॉज देखो, अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, ठीक है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, बट उसको मैच करने के लिए उतने जॉब्स या उतनी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की टू मूव फ्रॉम द रूरल अर्बन एरियाज आर नॉट एबल टू मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज. ठीक है, जो माइग्रेट करके आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, उतने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए उनके नीड्स को पूरा करने के लिए, उतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए अर्बन एरियाज में to sustain the population which is migrating from rural to urban areas. तो बेसिकली जो पॉवर्टी रूरल एरियाज में थी वो शिफ्ट हो गई अर्बन एरियाज में, बिकॉज अर्बन एरियाज ऑल्सो हैव नॉट डेवलप्ड टू दैट एक्सटेंट इन इंडिया. बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत लो है, उतना ज्यादा हाई नहीं है. इसकी वजह से इवन द पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज दे आर नॉट एबल टू मीट or sustain their needs as effectively as they would have thought when they had migrated, because इतने resources even urban areas में इतने resources नहीं है, इतना proper industrial growth नहीं हुआ है कि उस particular section of society या migrants की needs को पूरा कर सके. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रूरल पॉवर्टी जो थी now that converts into urban poverty. And because in the urban areas already there is so much huge density of the population, especially in the class 1 cities. क्लास 1 सिटीज जो होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल योर दिल्ली, मुंबई, ठीक है, चेन्नई, इन्हीं सारे सिटीज में, कोलकाता, इन्हीं सारे सिटीज में बेसिकली मेनली माइग्रेशन होता है ऑफ पीपल. एंड जितनी भी क्लास 1 सिटीज हैं और भी जो सिटीज हैं, नॉट जस्ट क्लास 1 सिटीज, ये दे आर ऑलरेडी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी as far as providing jobs and as far as providing housing and other facilities are concerned, because उनकी भी अपनी एक capacity है. They are already overutilizing their capacity to sustain the population which is living in the urban areas already. And if there is more migration which happens from the rural areas, तो overflow हो जाता है, and overflow हो जाता है, that means फिर क्या होता है कि these population which are migrating from rural to urban areas, they are not able to get enough shelter facilities, enough फूड फैसिलिटीज एंड अदर रिसोर्सेज, इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती है. तो वो कुछ टाइम के लिए स्लम्स के में या और सारे एरियाज में रिसाइड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड जो जगह हो, ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड जो सिटीज हैं, अर्बन एरियाज हैं, उसमें इतनी जगह नहीं है कि दीज पीपल विल गेट अफोर्डेबल हाउसिंग. And when these people who are migrating from rural to urban areas, they do not get affordable housing, they reside in the slums, and that is why slum creation is an economic effect of urbanization. और स्लम्स में रिसाइड करते हैं, और स्लम्स का जो लिविंग कंडीशंस है ऑलरेडी एज फार एज दी सैनिटेशन प्रॉब्लम इज कंसर्न, हेल्थ एंड हाइजीन प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, बहुत सारे टाइप के इश्यूज आते हैं ये स्लम एरियाज में. एंड दीज स्लम एरियाज में जब लोग आके रहते हैं, इतने टाइम तक रिसाइड करते हैं, तो बहुत सारे और एसोसिएटेड प्रॉब्लम जनरेट हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे इतना वाटर का प्रॉब्लम होता है, सैनिटेशन का, हेल्थ हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, अदर बेसिक एम्यूनिटीज का प्रॉब्लम होता है स्लम एरियाज में. So slum का creation is not a very good thing. It denotes that it's actually a negative effect of Indian urbanization. Okay, increased economic disparities, as we have talked about, कि wealth जो distribution है, that is very inequitable. Okay, it should be that the wealth should be equally distributed amongst all sections of society, which is not the case in India. बहुत ज़्यादा economic disparity है, rich poor के बीच में, rural urban के बीच में, और वही सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है because of urbanization. इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो जब people are migrating, so obviously the demand on the products is increasing, the demand on the products is increasing, and जब demand population जो है urban areas की वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज इतना ज़्यादा urbanization हो रहा है और वहाँ पे उतने प्रोडक्ट्स नहीं है, तो जब प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम होगी एंड डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइज होगा कमोडिटीज का. ओके, so this is one effect. What is the sociological effect of Indian urbanization? Increased crime and violence. Obviously, these people who are migrating from rural areas to the urban areas, when they are not getting enough economic opportunities and उनके पास daily needs को sustain करने के लिए पैसे नहीं आ पा रहे, then they will obviously engage themselves in other criminal and violent activities to take out their frustration. That is what they would do. That is the sociological effect of Indian urbanization. Then obviously drug और जो लिकर माफिया, ये सब क्यों जनरेट होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स एंड ऑल. इसकी वजह से ही उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो गैदर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सारे इलीगल और इलिसिट एक्टिविटीज में अट्रैक्ट होते हैं.
ठीक है। ग्रेजुअल कल्चरल शिफ्ट भी होता है, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन होता है सोसाइटी का, जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि रूरल एरियाज में मेनली जॉइंट फैमिली का कल्चर अभी भी है, बट अर्बन एरियाज में इतना अफोर्डेबल हाउसिंग और दूसरे जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हैं अर्बन एरिया में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिलीज दे गेट कन्वर्टेड टू न्यूक्लियर फैमिलीज, और भी बहुत तरीके का वेस्टर्नाइजेशन होता है। If you come in the urban areas, you will see a marked shift in the living and the lifestyle of the people living in the rural in the urban areas, because यहाँ पे कल्चर ही डिफरेंट होता है अर्बन एरियाज में, एंड वी आर ट्राइंग टू इमिटेट वेस्टर्न मॉडर्निटी एंड वेस्टर्न लिविंग एंड लाइफस्टाइल इन द अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, रहने का एंड लाइफस्टाइल का, खाने का, म्यूजिक का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है इन द अर्बन एरियाज। ओके, व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन, बिकॉज हम देखा कि अभी हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि अभी कोरोना है, कोविड की सिचुएशन में जितने भी स्लम एरियाज हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहाँ पे लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आए हैं और रह रहे हैं, सिटी के आउटस्कर्ट्स में ले लो या कहीं भी ले लो, या लाइक टू कंसिडर द धारावी in Mumbai and other slum areas in cities like Delhi and Chennai, जो पे huge density of population रह रही है, which is a result of obviously urbanization। आप वहाँ देख रहे हो कि कोरोना को and other such communicable diseases का spread कितना वाइडली हो जाता है एंड कितना डिफिकल्ट होता है उस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल कर पाना, स्पेशली इन दी स्लम एरियाज। तो हेल्थ इफेक्ट्स भी अर्बनाइजेशन की ये हैं कि अगर अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन एक मास लेवल पे इंक्रीज होने लग जाएगी, so they will obviously be threat of the lifestyle related diseases like obesity, diabetes, etc., undernutrition but overweight people, stress, more prevalence of chronic diseases. You would always see that the people who are living in the rural areas are relatively बेटर हेल्थ वाइज, बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट का भी बहुत असर पड़ता है, बिकॉज रूरल एरियाज में इतना ज्यादा पॉपुलेशन डिसाइड नहीं करता जितना अर्बन एरियाज में करता है, एंड रूरल एरियाज में रिसोर्सेज कम है बट रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी कम है, बट यहाँ पे क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का एंड रिसोर्सेज उतने हैं नहीं अर्बन एरियाज में। ओके, तो बेसिकली ये सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं देयर इज मोर प्रेवलेंस बिकॉज ऑफ द लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल आर लिविंग सो क्लोज टू ईच अदर, इतने डेंस एनवायरनमेंट में रहते हैं, एंड दे आर लिविंग इन पुअरली हाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, बहुत पुअर हाइजीनिक सिचुएशंस में रहते हैं, उसकी वजह से देयर मोर प्रेवलेंस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस and there is widespread of other communicable diseases also in the urban areas। तो ये सारे health effects हैं, ठीक है। Now, what are the environmental effects of Indian urbanization? Increased pollution and formation of urban heat islands, as you know। अब ये जो urban heat islands का concept है, अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप अच्छे से अलग से भी पढ़ लेना, बट अर्बन हीट आइलैंड बेसिकली यही फिनोमेनन होता है कि बिकॉज सिटीज में क्या होता है, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, हाईली डेंस पॉपुलेशंस में जब ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं तो बेसिकली जो हीट होती है जो कि निकल जानी चाहिए, एंड कूलिंग का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बिकॉज देयर इज वेरी लेस ग्रीनरी इन द अर्बन एरियाज इफ यू कंपेयर इट विद द रूरल एरियाज। बहुत ग्रीनरी बहुत कम होती है, प्लांट्स एंड वेजिटेशन बहुत कम होते हैं, एंड हाई राइज बिल्डिंग होती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल हीट या टेम्परेचर भी ज्यादा इंट्रैप हो जाती है इन बिल्डिंग्स, एंड अगर जो अर्बन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अर्बन एरियाज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके जो लिविंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हाई राइज बिल्डिंग, उनके बीच में हीट इतनी ज्यादा इंट्रैप हो जाती है कि दिस क्रिएट्स फिनोमेनन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स एज फार एज दी अर्बन एरियाज कंसर्न। इफ यू कंपेयर इट विद रूरल में यूजुअली टेम्परेचर बहुत कूल होता है, बट अर्बन एरियाज में थोड़ा ज्यादा ही टेम्परेचर होता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेनन अर्बन हीट आइलैंड, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइंड ऑफ लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज। लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज, अर्बन हीट आइलैंड्स का प्रॉब्लम हो जाता है सिटीज में, ठीक है। ड्विंडलिंग ग्रीन वेजिटेशन, ओके, ग्रीन वेजिटेशन उतना होता नहीं जितना होना चाहिए। इंक्रीज्ड स्ट्रेस होता है लैंड में ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड कंस्ट्रक्शंस, एंड ऑब्वियसली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, लॉट ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन देखा जाता है अर्बन एरियाज में, कि हम देखते हैं दिल्ली एंड बाकी सिटीज में पॉल्यूशन का कितना प्रॉब्लम है, बिकॉज पीपल आर लिविंग एंड ज्यादा से ज्यादा पीपल व्हीकल्स का यूज करते हैं, बहुत सारे कार्स वगैरह का यूज करते हैं, एंड बहुत सारे इतनी ज्यादा जो अराउंड इन दी एफिनिटी ऑफ द अर्बन एरियाज बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं या थर्मल इंडस्ट्रीज होते हैं, सो दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ हीट एंड अदर poisonous gases are released, and due to pollution also, pollution which is mainly vehicular pollution, ये जो vehicles ज़्यादा होते हैं urban areas में उनसे ज़्यादा जो एक increase pollution का problem बहुत ज़्यादा होता है urban areas में, obviously that has a direct effect on the health
of the people living in the urban areas. तो ये सारे issues होते हैं urban areas में. Okay. Now, urbanization जो basically India में develop हुआ था, that developed right at a very fast rate after independence, and some of the factors now we will study which were responsible for urbanization of India. पहले तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है effect क्या है urbanization की, nature क्या है, concept क्या है urbanization का. Now we will study about the factors that were responsible to cause urbanization in India at the first place. पहले तो हमने देखा कि obviously mixed economic system and growth of private sector and service sector होने लग गया. वो सारी चीजें तो हमने देखी, बट साथ में उसके और भी फैक्टर्स थे. First of all, you have to understand that urbanization is a product of demographic explosion. Demographic explosion means you have to understand that urbanization side by side parallel हो रहा है, साथ साथ में जो हमारा population explosion हो रहा है, that is population is also increasing at a very fast rate in India. Also it is then obviously कहीं ना कहीं क्योंकि population ही इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो population दोनों जगह बढ़ रहा है, rural areas में भी बढ़ रहा है, urban areas में भी population का growth बहुत ज़्यादा हो रहा है, which is also called as demographic explosion. तो उसकी वजह से जो population ही इतना बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो poverty generate हो रही है, because resources उतने हैं नहीं and population बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं poverty induced rural to urban migration हो रहा है. So urbanization in some instances is not natural, that just to seek better job opportunities, नहीं, it's that कि इतना ज़्यादा population grow कर रहा है that where will they live, okay, where will they live, तो obviously फिर ज़्यादा से ज़्यादा section क्या होता है, migrate करने लग जाता है because of poverty and other such extreme conditions, extreme financial conditions की वजह से भी लोग rural to urban areas में migrate करते हैं. तो एक ये phenomenon जो है, ये भी एक reason है urbanization का. ठीक है. फिर जो एक मास माइग्रेशन हुआ था पीपल का ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो रीजन है अर्बनाइजेशन का, वो तो मेनली वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए है. ठीक है. फिर 11th 5th ईयर जो प्लान आया था, दैट एम्ड एट अर्बनाइजेशन एट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट वन रीजन पीपल मूव इनटू द सिटीज. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी अर्बन एरियाज में ज्यादा होती हैं, इस वजह से भी लोग यहाँ आते हैं. ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब बेसिकली हो गया. Mechanization of agriculture means now the use of agricultural inputs and other technologies in agriculture. Like for example, जो trucks या tractors वगैरह, ये जो और भी equipments हैं, like for example hand pumps and other such equipments जो use होने लग गया agriculture में, agriculture का mechanization होने लग गया, tractors वगैरह का increase, जो technological equipments का जब agriculture में use होने लग गया, जो labor का value था, जो मैन पावर या जो लेबर का वैल्यू था, वो डिक्रीज हो गया. एंड ऑब्वियसली आफ्टर द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हेन लेबर का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दैट लेबर विल ऑब्वियसली माइग्रेट इनटू द अर्बन एरियाज. क्योंकि पहले जब मैकेनाइजेशन नहीं था, तो वो मैनुअली सब कुछ एग्रीकल्चर में कर रहे थे, बट अब क्योंकि मैकेनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, सो दे आर नाउ मूविंग टू अर्बन एरियाज, बिकॉज अब उनके लिए काम ही नहीं बचा है वहाँ पे. ठीक है. because most of the works of the agriculture are now done by agricultural equipments and better advanced जो technological equipments आ गए हैं agriculture में. ठीक है. एक होता है distress migration भी होता है. ठीक है. वो जिसके पीछे बहुत सारे सोशल एंड साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं. कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको सपोजिटली रूरल एरिया में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला, तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी हो जाता है. देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है अर्बन एरियाज में, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, they are also much better in the urban areas, and that is also people are migrating in the urban areas because कि या तो वो लोगों को, बच्चों को अपने पढ़ने के लिए भेज देते हैं अर्बन एरियाज में, या हॉस्पिटलाइजेशन अदर मेडिकल फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में ज्यादा बेटर है, इस वजह से भी लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आते हैं. ठीक है. अब ये तो हो गया कि पीपल माइग्रेट करके आ रहे हैं ना. व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर getting created due to the such mass migration which is happening. इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? तो जो प्रॉब्लम मेनली क्रिएट हो रही है, वो हो रही है, आप हम ऐसे समझेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम हो रही है. इंडियन सिटीज जो होती हैं, दे आर सिवियरली शॉर्ट ऑफ क्वालिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिकॉज मेनली जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है. ठीक है. बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एंड जो है भी वो इतना एफिशिएंट नहीं है, बहुत स्लो ट्रांसपोर्ट. तो इंडियन सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो मास माइग्रेशन करके लोग यहाँ आ रहे हैं, वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का यूज कर सकें एंड कम पॉल्यूशन क्रिएट हो मेनली. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वगैरह का यूज हो ट्रांसपोर्टेशन में. फिर सैनिटेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है. इंडियन सिटीज में क्या होता है, दे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज पाइल अप एंड दे लैक इन सीवेज फैसिलिटीज.
सीवरेज फैसिलिटीज मीन सीवरेज नहीं हो पाता है पोल्यूशन का या जो गार्बेज वेस्ट होता है. दे लैक इन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑल्सो. वाटर शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है. इंडियन सिटीज रिक्वायर हाई अमाउंट्स ऑफ वाटर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स रेसिडेंट्स व्हिच रिजल्ट्स इन वाटर शॉर्टेज ऑल्सो. हमेशा जो अर्बन एरियाज में आप देखते हो वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट का तो प्रॉब्लम है बिकॉज सिटीज हैव गॉट अ लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स and as a result there is severe competition for securing it and this results in large scale unemployment. Housing and slums. अब देखो बेसिकली ये जो पीपल माइग्रेट होकर रूरल से अर्बन एरियाज में आए हैं वो भी उन्हीं जॉब्स को सीख कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अर्बन एरियाज के लोग सीख कर रहे थे. तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है बिकॉज देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स ओनली एंड द कंटेस्टेंट्स फॉर दोज जॉब्स इंक्रीज. तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. हाउसिंग एंड स्लम्स का प्रॉब्लम होता है बिकॉज सिटीज सफर फ्रॉम लैक ऑफ हाउसिंग और यू कैन से लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल मेनली. स्लम्स में कौन रहते हैं? पुअर पीपल हैं जो माइग्रेट होकर रूरल एरिया से आए हैं. दे हैव नॉट गॉट एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग. सो दोज आर द पीपल हु आर लिविंग इन mainly slums in the urban areas. Okay, that results in the formation of slums. Crime and women's safety. Many cities of India they have got a high rate of crime because जब उनकी जो aspirations हैं जो लोग यहाँ migrate वो पूरी नहीं हो पाई तो they get attracted to other criminal and such illicit activities. For example, Delhi has a high rate of crime against women. Then migration का problem होता है. Indian cities are hubs of employment compared to rural areas. And that results from rural to urban migration. Overcrowding का problem होता है because these cities they suffer from congestion due to high number of persons who are living in a very small area. That is called as overcrowding. Okay. Now, what are features of Indian urbanization? Okay. So, urbanization जो इंडिया में होता है that occurs without strong industrialization and strong economic base. Mainly that means that ऐसा नहीं कि industrialization नहीं हुआ है but up to the mark industrialization नहीं है या उतना strong economic base even in urban areas में भी नहीं है because हमारे कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो इस वजह से जो पीपल माइग्रेट होकर आते हैं उनको भी उतना हाई लेवल का सस्टेनेबल जॉब नहीं मिलता है यहाँ पे. तो ये एक प्रॉब्लम है. तो ये जो हो रहा है उसकी वजह से क्योंकि बिकॉज इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द और एन एक्सप्लोजन इन द पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी इंड्यूस्ड जो एक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है बिकॉज रूरल एरियाज में इतना पॉवर्टी है कि उसको एस्केप करने के लिए लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट होकर आते हैं और यहाँ भी उनको उस तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटी या इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे भी उतना नहीं है अर्बन एरियाज में दे आर नॉट एबल टू अब्सॉर्ब इन द अर्बन एरियाज and when this happens rural poverty converts into urban poverty. अब रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसकी वजह से मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम हो रहा है फॉलोड बाय माइजरी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट exploitation in the forms of crimes and all and people also the urban areas sometimes exploit the people from the rural areas inequalities generate हो रही है degradation हो रहा है in the quality of urban life. Urbanization occurs not due to urban pull but also due to rural push factors. That is you have to understand that ऐसा कुछ नहीं कि urban areas में बहुत सारे amenities ऐसे develop हो गए हैं इंडिया में कि लोग अट्रैक्ट होकर रूरल से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं. नहीं, इट्स बिकॉज दैट दी प्रॉब्लम जो रूरल एरियाज में है उसकी वजह से रूरल पुश फैक्टर जो है कि एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं है, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं है, रूरल एरियाज में हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो उतनी डेवलप्ड नहीं है. इस वजह से एजुकेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज उतनी डेवलप नहीं. इस वजह से दे आर गेटिंग पुश्ड और जो एक तरीके से पॉवर्टी या अदर अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर से पुश होकर दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड इन द अर्बन एरियाज. इट्स नॉट दैट द अर्बन एरियाज में इतनी कोई एमिनिटीज है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस. ओके, अब जब ये रूरल एरिया से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेशर में अर्बन एरियाज तक आते हैं, ठीक है. अब तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक क्या कंक्लूजन आप निकालते हो कि आपको अपने रूरल एरियाज को भी डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को इतना डेवलप करना है, प्रोडक्टिव बनाना है कि जो एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड रहे, ठीक है. स्पेशली एग्रीकल्चर को आपको इतना रेन्यूमरेटिव बनाना है, इतना प्रोडक्टिव बनाना है कि एग्रीकल्चर लेबर फोर्स माइग्रेट होकर पॉवर्टी की वजह से अर्बन एरियाज में ना आए, ठीक है. अर्बन एरियाज में आपको बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी सर्च में मास माइग्रेशन ना हो. माइग्रेशन होना अर्बन एरियाज में इज नॉट अ बैड थिंग बट इट शुड हैपन विद अ गुड सॉलिड इकोनॉमिक रीजन एंड नॉट जस्ट की पॉवर्टी की वजह से लोग माइग्रेट होकर रूरल से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं एंड यहाँ पे भी दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. Urban centers in India are characterized by extreme heterogeneity in terms of their social economic characteristics. Okay, बहुत सारे heterogeneity means you will see a lot of variation and diversity in the kind of social economic conditions in the urban areas if you compare it with the rural areas. Rural areas में mainly एक तरीके का ही lifestyle होता है
एक तरीके की थिंकिंग अप्रोच होती है लोगों की, बट दैट्स नॉट द केस इन द अर्बन एरियाज. Most of these cities using capital intensive technologies, they cannot generate employment for the distressed rural poor, and so there is transfer from rural poverty to urban poverty. Urbanization is generating social and economic inequalities which warrant social conflicts, crimes, and other antisocial activities. जो क्लास वन सिटीज हैं they have reached saturation level of employment generating capacity. उसकी वजह से cities are suffering from urban poverty, unemployment, even housing shortage होता है, crisis in urban infrastructure होता है. These large cities they cannot absorb these distressed rural migrants, that is poor, landless, illiterate and unskilled जो agricultural laborers होते हैं. अगर ये जो laborers हैं उनको और भी कोई skill आता होगा तो मे बी वो किसी ना किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो अर्बन एरियाज में जो वेरियस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं या मीडियम टर्म इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक टेलर एंड अदर सच के जो छोटे छोटे कॉबलर्स, ट्रेलर्स एंड अदर सच जॉब्स होते हैं उसमें वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई भी स्किल नहीं है एग्रीकल्चरल लेबर्स में तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में ही है, तो वो यहाँ अर्बन एरियाज में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं कहीं ना कहीं. एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इवन इन द अर्बन एरियाज इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग शॉर्टेज. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्राइसिस क्रिएट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अर्बन एरियाज में बढ़ जाती है बिकॉज दीज पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन एरियाज दे आर अनस्किल्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स. उनके लिए कोई अल्टरनेटिव जॉब इवन द अर्बन एरियाज में नहीं है बिकॉज उनके पास और कोई स्किल नहीं है. ठीक है. एंड दे आर लैंडलेस इलिटरेट पीपल ऑल्सो, तो और भी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं. Now, what are the measures which are adopted by the government to improve our urban landscape? So you have to understand यहाँ पे जो मैंने smart cities program mention करा है mainly ये है it is focusing on renovating the urban infrastructure कि urban infrastructure को किस तरीके से upgrade किया जाए एंड जो फैसिलिटीज या सर्विसेज अर्बन एरियाज में है उनको किस तरीके से बेटरमेंट हो ताकि अर्बन एरियाज के जो प्रॉब्लम है अपने प्रॉब्लम है पॉल्यूशन है एंड अदर सच जो प्रॉब्लम्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है अर्बन एरियाज में वो हो सके. तो बेसिकली इसलिए ये मेजर किया है. बहुत सारे अदर रेमेडीज भी हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट स्मार्ट सिटीज का ये जो एक सोल्यूशन है ये रेमेडी यहाँ मेंशन करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्बन एरियाज को कैसे बेटर बना सके सो दैट जो पीपल अर्बन एरियाज में अर्बनाइजेशन के बाद जो पीपल रह रहे हैं अर्बन एरियाज में उनकी लाइफस्टाइल या उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. उसके लिए है स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम. तो स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम was launched by the government to renovate the Indian cities. It aims at creating state-of-the-art urban infrastructure जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है ड्यू टू डिस्ट्रेस्ड जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन हुआ है. कहीं ना कहीं जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है उसकी वजह से. तो कैसे आपको स्टेट ऑफ द आर्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कपल्ड विद डिजिटल सॉल्यूशंस. It aims at improving citizen-centric administration in the cities and make them ecologically sustainable. ये मेन गोल है स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम का. ओके इसमें क्या क्या आ जाएगा. ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज में आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन, ग्रीवेंस रेड्रेसल, सिटीजन एंगेजमेंट, वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग होगा बिकॉज हम देख रहे हैं कि इंडिया में अर्बन एरियाज में क्राइम का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग होगा. वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हैंडल होगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन की जो अलग ही एक हाई लेवल का वेस्ट या गार्बेज डिस्पोजल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं अर्बन एरियाज में. उसको कैसे टैकल करोगे. तो वेस्ट टू एनर्जी एंड फ्यूल का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कैसे हम वेस्ट को अच्छा यूज करके या रीयूज करके हम उसको एनर्जी या फ्यूल जनरेट कर सके. वेस्ट टू कंपोस्ट क्रिएट कर सके. एवरी ड्रॉप को जो है दैट हैज टू बी ट्रीटेड. ट्रीटमेंट ऑफ द CND वेस्ट हो सके. ठीक है. देन एनर्जी मैनेजमेंट कैसे होता है थ्रू स्मार्ट मीटर्स एंड मैनेजमेंट. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करके एनर्जी को मैनेज करो. एनर्जी एफिशिएंट या ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाओ. ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाओ. ग्रीन बिल्डिंग्स का अपना एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है. अनदर सच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके हम एक सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बना सकते हैं. अर्बन मोबिलिटी पे काम करना. मोबिलिटी दैट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे काम करना. ठीक है. स्मार्ट पार्किंग का यूज करके, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड अदर सर्टन टेलीमेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करके ये सारे हमें फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में इम्प्रूव कर रहे हैं. ठीक है. जिसमें मेनली जो फोकस होता है वो याद करना है आपको होता है वेस्ट मैनेजमेंट पे. ठीक है. तो दिस वाज now we will discuss the some more remedial measures because your topic is urbanization and its related remedies. तो हमें urbanization का प्रॉब्लम तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें ये देखना है कि remedial measures क्या है to combat the problems of urbanization. तो what are the some of the remedial measures? तो
first of all is you have to encourage planned communities for migrants with हाउसिंग एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज, मतलब जो माइग्रेंट्स माइग्रेट करके रूरल से अर्बन एरियाज में आए हैं उनको आप प्रॉपर कम्युनिटीज की तरह डेजिग्नेट करो और उनको एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करो सो दैट स्लम एरियाज एंड अदर सच थिंग्स are not created. You should provide efficient, that is, the government should provide efficient public transport, improve power and water supply in the urban areas, improve sanitary conditions, improve health infrastructure for preventive and curative medicine, improve education facilities, civic amenities, rapid mass transport, efficient use of the urban land and other resources. लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रैटेजिक अर्बन प्लानिंग करनी है इस तरीके से कि एक रीजनल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव को लेकर, ठीक है. इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट हैज टू बी इंश्योर्ड. नीड टू स्ट्रेंथन अर्बन गवर्नेंस. इंप्रूवमेंट्स ऑफ अर्बन यूटिलिटीज सच एज वाटर एंड सीवरेज, जो कि आपका इंक्लूड होता है नेशनल अर्बन हेल्थ जो मिशन है उसमें भी आपका ये एक कंपोनेंट इंक्लूड होता है टू improve the urban utilities such as water and sewerage management and better urban public health. Need to fulfill basic needs of urban poor. Smart city concept if implemented effectively, जो कि हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में. एंड पूरा प्रोविजन ऑफ urban amenities to rural areas, पूरा एक स्कीम है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में कि उसमें क्या क्या बताया गया है रिगार्डिंग अर्बन गवर्नेंस एंड अर्बन एरियाज के मैनेजमेंट के लिए. एक पूरी डिटेल्ड स्कीम है एंड इस पर्टिकुलर स्कीम को अच्छी तरीके से अप्लाई करना चाहिए अर्बन एंड रूरल एरियाज में. तो ये पूरा वो है. फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है उसके अंडर अर्बन यूटिलिटीज सच एज वाटर एंड सीवरेज को कैसे हमें इम्प्रूव करना है, अर्बन पब्लिक हेल्थ को कैसे हमें प्रमोट करना है और बेटर करना है, अर्बन गवर्नेंस को कैसे हमें इम्प्रूव करना है, स्ट्रैटेजिक अर्बन प्लानिंग कैसे करनी है सो दैट एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो सके. ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए एज फार एज द रेमेडियल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन आर कंसर्न. नाउ सी अर्बनाइजेशन हैज गॉट इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स आल्सो. बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी है अर्बनाइजेशन का, मोर एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल दैट, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं अर्बनाइजेशन के जो हमने डिस्कस किए पिछले स्लाइड्स में. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी है, ठीक है. अर्बन प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए, प्लान्ड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, प्लान्ड हाउसिंग, प्लान्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो सके. अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, जो रोज की डेली नीड्स की अर्बन यूटिलिटीज है, वाटर एंड सीवरेज एक्सेट्रा फैसिलिटीज, उनको इम्प्रूव करना है. बेटर अर्बन पब्लिक हेल्थ पे काम करना है, बेसिक नीड्स ऑफ अर्बन पुअर को मीट करना है. तो ये सारी चीजें हमें करनी है. Okay, so this was it for urbanization and associated जो problems होती हैं and remedies होती हैं. In the next lecture, we will be taking up the issue of poverty and developmental issues. They also form part of your social issues paper 1. So this was it for this lecture, guys. Thank you so much.